Welcome to Thank you. Welcome to this exciting session of Monday NutriLift 360. Today we are going to discuss the role of macronutrients and what we call the rainbow connect. You know, हमने सबने सुना है हमारी प्लेट कलरफुल होनी चाहिए, लेकिन क्यों? Not only does it build our appetite, but it has a lot more impact on our health, which we are going to discuss further with two of our very esteemed speakers. To begin with, let me invite Farooq Tarapur. He's an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had a 40 plus years of active sporting career. He's won innumerable awards, including Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. He's a flag bearer on this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him on this virtual stage. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone, and welcome to this exciting Monday session. I hope everybody has already had dinner. Everybody has done their walk after that. And last time we spoke about gait speed. I hope you've taken cognizance of that. And when you're moving from your living room to your bedroom, from the living room to the kitchen, bedroom to the kitchen, I hope you're keeping that gait speed in mind. Because if you do that on small, if you take cognizance of the small steps that you need to take in life and you're correcting them early, you don't have to wait till the age of 65. Because by the time you get to 65, and if you try to correct it, it's not that you can't correct it at 65, but I can assure you it will be more difficult. So correct it now. Wherever you are going, you're going from your house to an ATM, or your house to somebody's house, or just going to buy some fruits. It might be a good idea that you keep this gait speed in mind, because when you keep this gait speed in mind, it will have a significant impact on your overall medium life years. There's a big difference between health span and lifespan. And this is such a vital sign, the sixth vital sign, which helps you to determine whether a person, how long a person is going to live. So let's, give a little bit of more emphasis on this subject and not just be, stuck. Just a couple of days ago, I was in somebody's house, it was a very old house. And I was really surprised, the distance between the bedroom and the bathroom was like almost 25 meters. And I said, wow, when you look at houses today, each bedroom comes with a attached toilet. It's extremely convenient. It's extremely good. But I was just calculating in my mind. By the way, the fridge was also in the living room. Okay, so imagine even if you are in the kitchen, you get something. So can you imagine the amount of extra neat you automatically doing? Now, with as convenience got into our lives, we started avoiding, life started moving in a sedentary direction, and we started avoiding the basic thing, this aerobic fitness started deteriorating day by day. And that has, resulted in really bad health. With that deteriorating, people started looking at medicine for the answers. Their dependency on medication started to increase. And they just thought that as science is advancing, that there's no problem. If you have a problem, just go to the doctor. The doctor will give you some medicine, and most people think that every medicine is like a magic pill, not realizing that it also has a particular side effect. Today we are going to talk about micronutrients, and it was a long time ago, maybe 4 decades ago, in sports we had realized that even if there's a deficiency of one micronutrient, even people at the Olympic level were making silly decisions, and one would have thought that 99 out of 10 times this decision would have been taken in this particular fashion. But it was strange and surprising to see that how athletes at such a high level, create these kind of errors and mistakes, and even forget
forget orientation and cannot really analyze in their own mind the difference between right and left. And that is the reason why this topic is so important. Today, you're going to listen to it from, a guy who had initially no idea of micronutrients. He was over 100 kilos, never thought that he could get his weight below 100. He used to take pleasure in saying, oh, I'm in triple figures. And the kind of transformation that he's made is so amazing that if you get to listen to him very carefully, because he's understood, how to bring this weight down in a logical fashion, in a scientific fashion, and most important, to sustain it over a period of time. And he's like lost 30-40 kilos over a period of time. So nobody better than Manoj, to share with you. Once you see his transformation journey, you will realize that what an amazing journey that was. And he's going to share his journey as well as what is the role of micronutrients today, in our life. Pay a lot of attention to your nutrient. When you're preparing your plate, check whether you got the macro and the micronutrients. Just don't put some makhana on your plate and say, wow, I mean, it doesn't have the right balance between macro and micronutrients. So in order to, since this topic is so vast, we've divided it, and today we're going to listen only to micronutrients. So without wasting much of Manoj's time, over to Manoj to help you understand the importance of micronutrients in your day-to-day life. Over to you, Manoj. Okay. Thank you, Farooq. Thank you very much. ओके, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी स्क्रीन आज बहुत कलरफुल रहेगी, बहुत वाइब्रेंट कलर दिखेंगे आपको, बहुत रंग दिखेंगे। ऐसे ही जिंदगी के भी रंग हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों खाने चाहिए और कब खाने चाहिए, या फिर अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि सुबह क्यों खाना चाहिए, है ना। तो इससे जानने से पहले ये समझ लें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है ना। मुझे एक बात याद आती है, जब भी मैं प्रोटीन या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ, मैक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ, तो जब मेरी लड़की हो रही थी पैदा, तो उस वक्त डॉक्टर ने कमला को कुछ उस वक्त के हिसाब से जो मेरे दिमाग में था, कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी। तो मैंने बोला, ये क्या लिख के दिया आपने? तो उन्होंने बोला कुछ विटामिन है। तो सडनली मैंने उसका सवाल पूछा था कि ये मुझे एक बताइए कि विटामिन और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है। मुझे उस वक्त वो पता नहीं था, ये आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, 29-30 साल पहले की। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त। तो उन्होंने खाली सिर्फ इतना बताया था कि प्रोटीन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है और विटामिन आपको थोड़े क्वांटिटी में खाना होता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। जस्ट इमेजिन, एक गायनाकोलॉजिस्ट और एक मैं लेमैन के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने सिर्फ डिफरेंस इतना बताया कि एक को ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है, एक को कम क्वांटिटी में खाना होता है। आज आप थोड़ा ज़्यादा जान जाओगे। ओके, तो बेसिकली जो मैक्रो, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे होते हैं, तो मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब जो हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। और एक होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा या बहुत कम, उसमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स। ओके, अब विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि विटामिन और मिनरल्स आप इस तरह से देख सकते हो, एक होती है तलवार और एक होती है तलवार की धार, है ना। दो अलग अलग चीजें हैं। तलवार बनाने के लिए बहुत सारा लोहा लगता है, धार बनाने के लिए लोहा नहीं लगता। जो लोहा है उसी को शार्प करना होता है। तो इस तरह से विटामिन और मिनरल्स वो काम करते हैं जो आपकी चीजों को धार देते हैं। आपके आंखें तो हैं, आंखों में रोशनी कहाँ से आएगी? विटामिन से आएगी, है ना। आपके पास ब्लड तो है, अच्छी तरह से फ्लो कैसा होगा? इसके लिए कुछ विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात है। तो विटामिन और मिनरल्स बहुत छोटे क्वांटिटी में खाना होता है, हमारी काम की एफिशिएंसी, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम आता है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। यहाँ पर आपको कुछ पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपको रोज क्यों खाना होता है कोई चीज,
या कोई विटामिन आप रोज क्यों नहीं खाते हैं, क्या रोज खाना जरूरी है क्या? यहाँ से पता चलेगा फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हुआ है जो अगर ज्यादा यूज न हो, जितना हमने बॉडी में डाला उतना अगर यूज नहीं होता है, बॉडी यूज नहीं कर पाती है, तो फैट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। मतलब आपने एक दिन अगर ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन काम आ जाएगा। दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वो चीज होती है, वो विटामिन है जो पानी में घुल जाता है। उसको आप इस तरह से समझिए कि आपने आज खाया, जितना खाया उतना यूज कर लेगा, बाकी उसको फेंक दे, आपके बॉडी में नहीं रखेगा। इसका मतलब उन विटामिन को आपको रोज खाना है। ओके, और जो मिनरल्स होते हैं वो तो घुलते ही नहीं है। अब आगे थोड़ा हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन क्या है? विटामिन है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर, ठीक है ना, कंट्रोल करते हैं। मतलब अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। कम रहा तो बुरा करेंगे, ज्यादा रहा तो अच्छा करेंगे। दो टाइप के विटामिन हैं, एक वाटर सोल्यूबल जैसे कि हमने बात करी, दूसरा फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अगर आपने ज्यादा खा भी लिया तो आपको ओवरडोसिंग नहीं होगी, और इसे आपको रोज खाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, रोज खाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज मैंने 4 नींबू पानी पी लिया तो कल कल अगर विटामिन सी की मैंने कुछ चीज नहीं भी खाई तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल है, क्योंकि कल के डेट के लिए आपके पास, कल के डेट के लिए आपका विटामिन सी नहीं है। तो ये कुछ विटामिन हैं, विटामिन B1, B2, बी की सारी कैटेगरियां, फिर नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन सी, ये वो सारे विटामिन हैं जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में सिर्फ 3-4 टाइप के विटामिन आते हैं जिसको आप याद रख सकते हो डैक के नाम से। DAKE, डी फॉर विटामिन डी, ए फॉर विटामिन ए, के फॉर विटामिन के, और ई फॉर विटामिन ई। ये पानी में नहीं घुलते हैं। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आपके फैट के अंदर स्टोर होके नेक्स्ट डे के लिए रहेगा। आपको पता होगा कि जो भी लोग विटामिन डी की गोली खाते होंगे, डॉक्टर उनको हफ्ते में एक दिन यह खाने बोलता होगा, या तो फिर महीने में एक बार इंजेक्शन लगा देता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फैट सोल्यूबल है। वो आपको एक साथ डोज दे देते हैं पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का, फिर आपके बॉडी में स्टोर रहता है। जब जरूरत पड़ती है वो बॉडी उसको उसमें से निकाल के यूज करने लग जाती है। इसकी एक दिक्कत ये है कि अगर आपने ज्यादा खा लिया तो ओवरडोसिंग का रिस्क हो सकता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली कोई आदमी उतना याद नहीं रखता। क्या रास्ता है हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद अभी हम आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स वो चीजें हैं जो आपको जमीन में मिल जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएगा आपको सारा चीज, है कि नहीं। जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है ना। ये सारी चीजें मिनरल्स हैं। हमारे बॉडी के अप्रोक्सीमेटली 4% मिनरल है। ये भी हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है उसको डेवलप करने के लिए और उसके फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए काम आता है। ओके, अब आगे आगे हम आगे बात कर रहे हैं कौन सा मिनरल किस काम आता है, उसमें आप सारा समझोगे। मिनरल्स और विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी तक हमने देख लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, समझ लिया कि मिनरल्स बेसिकली क्या है। कि अगर आप विटामिन अगर आप देखेंगे तो किस लेखा आता है। यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड रुचिता। विटामिन अगर आपके पास अच्छे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि तलवार और तलवार की धार, उसी तरह से आंख और आंख की रोशनी, आपका शरीर और आपका इम्यून सिस्टम, आपकी स्किन और हेल्दी स्किन। आप डिफरेंस रखिएगा, डिफरेंस देखिएगा। आपकी नसें और नसों का फंक्शन करना, नर्व एंड नर्वस सिस्टम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको इंप्रूव करने के लिए विटामिन की जरूरत है। आप तो बोले मेरा हड्डियां हड्डियां सबके पास होंगी, क्या स्ट्रांग है? स्ट्रांग करने के लिए काम आएगा। आप ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे। ना एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों ने एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी सुना होगा, क्योंकि हर डॉक्टर आपको ये बोलता है, हर मेडिकल स्टोर वाला आपको ये बोलता है। एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको दोनों एंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्ट्रांग करता है, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया को स्ट्रांग अच्छा करता है। तो आप देखिए कि विटामिन क्या काम आता है। आप बोल सकते हैं मुझे नहीं खाना, लेकिन आपको फिर अभी याद पता भी रहेगा कि नहीं खाने के नुकसान क्या है ना। लोगों की रोशनी क्यों खराब होती है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। आपकी इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर है, आपको समझ में आ गया। विटामिन सी कमी है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी स्किन हेल्दी क्यों नहीं दिखती, विटामिन सी, है ना। ये सारी चीजें। इसी तरह से मिनरल्स हैं।
मिनरल्स क्या क्या करता है? मिनरल्स आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करने में काम आता है, आपके बॉडी, आपके बोन को फॉर्मेट करने के लिए काम आता है, बनाने के लिए काम आता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, आपके बॉडी के जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए काम आता है, आपके डीएनए को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए काम आता है ना? तो ये सारी चीजें आपको विटामिन और मिनरल से मिलेंगे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि कौन सा विटामिन किस चीज के लिए काम आ सकता है ना? यहाँ पर एक चार्ट है, आप इसका स्लाइड खींच के रख सकते हो अपने पास, आपको काम आएगा। विटामिन ए आपकी आई हेल्थ के लिए काम आता है। विटामिन डी के मैग्नीशियम, सॉरी, हाँ, विटामिन डी के मैग्नीशियम कैल्शियम, मैं आपको दोनों की बात कर रहा हूँ, विटामिन और मिनरल्स मिक्स में, क्योंकि इसके अंदर कुछ मिनरल्स में कुछ विटामिन से, ये सारी चीजें आपको बोन हेल्थ के लिए काम आएंगी। विटामिन ई आपको स्किन के लिए काम आएगा। इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन सी, जिंक और सेलेनियम, ये सारी चीजें काम आएंगी। नर्व हेल्थ के लिए आपको B1, B2, B12, बी के सारे रेंज है ना, विटामिन बी के सारे जितने भी हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप, वो सारे काम आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग चीज के लिए अलग अलग विटामिन और मिनरल्स काम आते हैं। ये स्लाइड ये बताता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सपोज हमने उतना विटामिन या उतना मिनरल्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जितना हमको चाहिए, तो क्या होगा? वही जो बाकी लोगों को होता है, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी नहीं रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी मेमोरी कम हो सकती है, आपके मसल वीक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी लूज होगी तो आप कंफ्यूजन के स्टेट में रहोगे हमेशा, भूख लगना कम हो सकता है, इरेगुलेट हो सकता है, आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे या फिर थकान महसूस करेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें आपको नहीं खाने से, विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आपके बॉडी को नहीं मिले तो ये सारी तकलीफें आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बात आती है कि हमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत लंबी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड रुचिता। ये सारा चीज है, विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे सारा लिखा है। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, इस सारा लिखा है। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा, इस तरह से हर चीज के बारे में लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से क्या चीज मिल सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम है, ये रिलेवेंट है। अगले आपको हम अगले एक दो स्लाइड के बाद इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो चीजें मिलती हैं, जिन चीजों में मिलती है, क्या हम वो चीज रोज खाते हैं? बिकॉज याद रखिएगा कि हमें विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन हमको रोज खाना है। क्या हमको इसमें से, जो हमको जिसमें से मिलता है, क्या हम वो रोज खाते हैं, है ना? उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और इसका अगला स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आएगा कि हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, कैल्शियम कहाँ से मिल सकता है, क्लोराइड कहाँ से मिल सकता है, मैग्नीशियम कहाँ से मिल सकता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम या सोडियम कहाँ से मिल सकता है ना? ये सारे चीजें जहाँ से मिलती है, ये बताने का मतलब ये है ताकि आपको पता रहे कि खाने का महत्व क्या है और कलरफुल खाने का महत्व क्या है। क्योंकि अलग अलग कलर के फ्रूट या वेजिटेबल्स आपको अलग अलग विटामिन या मिनरल्स मिलते हैं, और वो उसका फायदा आपको जो मिलता है आपको हमने बता दिया। नहीं खाने से जो नुकसान मिलता है वो भी आपको बता दिया है। अगले स्लाइड में जाएंगे तो क्या हम इनफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं? जी बिल्कुल। हर 10 में से 8 आदमी हिंदुस्तान में मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी का शिकार है। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हैं उतना जितना उनको चाहिए, वो उतना विटामिन नहीं खा रहे हैं जितना उनको चाहिए, वो उतना विटामिन मिनरल्स नहीं खा रहे हैं। रिपोर्ट से बताती है कि 70% ऑफ पॉपुलेशन को तो 50% से भी कम विटामिन और मिनरल्स एवरी डे में मिल रहा है। 50% से भी कम, है ना? इमेजिन करिए कि हमें स्पोर्ट्स में ज्यादा मेडल्स क्यों नहीं मिलते। उसका एक रीजन ये है क्योंकि हमारे बच्चों को भी नहीं मिल रहा। जब हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा, उनके शरीर की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही। जब अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं वो पीछे लैग कर जाते हैं बाकी चीजों में। अगली स्लाइड में आप देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस तरह से अलग अलग कलर्स हैं। उन कलर्स को अगर आप देखेंगे, विटामिन डी जो डार्क रेड है आपको दिखेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में आपको विटामिन डी की कमी दिखेगी। आयरन की कमी देखो आपको कहाँ कहाँ दिखेगी, पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है ऊपर से नॉर्थ, यहाँ पर आपको विटामिन डी की कमी दिखेगी। आयोडीन की कमी पूरा ईस्टर्न पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसकी कमी है ना। तो इस तरह स्टेट वाइज भी है कि कहाँ पर ज्यादा कम है और कहाँ पर कम कम है, बट ओवरऑल कम है, इतना आप ध्यान में रखिए। क्योंकि जो मैंने आपको चार्ट बताया कि किस चीज में कितना किस चीज क्या क्या चीज आपको खानी होती है, अगर आप वो चीज नहीं खा रहे हैं तो आप आंख बंद करके सोच सकते हो कि आपको उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। ओके, अगर हमको आप बोलते हो अगर मैं खा भी रहा हूं तो फिर क्या आपको प्रॉपर मिल रहा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप देखेंगे कि जो भी चीज हम खाते हैं हमारे पास आते आते ही तकरीबन 6 से 15 दिन लग जाते हैं, है ना। उसके बाद भी हम कुछ कांड करते हैं उन सब्जियों के साथ, क्योंकि ज्यादा करके विटामिन और मिनरल्स आपने अगर आप तक अभी देख ही लिया होगा ये आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल में मिलता है। अगर आप देखेंगे ग्रीन बीन्स, मटर, जो उसे खेत से निकाला जाता है और हमारे प्लेट तक पहुंचने के लिए 11 से 15 दिन यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि मटर ठंडी के मौसम में आता है और फिर हम फ्रोजन खाते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, है ना, जो कि उससे भी ज्यादा है। सिर्फ 15 दिन के अंदर वो अपने न्यूट्रिएंट्स का 45% तो उसमें से गायब हो चुका है। तो अगर आप ये सोच भी रहे हो ना कि मैं रोज मटर खा रहा हूँ या खा रही हूँ, आप अंदाजा लगा लो कि क्या खा रहे है ना। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर 6 से 15 दिन के अंदर 25% न्यूट्रिएंट उसका कम हो गया। कैरेट्स 8 से 10 दिन के अंदर उसका 10% कम हो गया। ये तो हो गया आपके घर तक आने की बात। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उसको फिर भी फ्रिज में रख देते हैं। इमीडिएटली उसी दिन तो नहीं खाते हैं, क्योंकि आजकल एक सिस्टम चला है कि हम 6-7 दिन का साथ में सामान साथ में खरीदेंगे, फ्रिज में रखेंगे और जब चाहिए तब उसमें से निकाल के खाएंगे। फिर हम धोते भी हैं। अब या तो हम उसको बहुत अच्छे से नहीं धोते या तो बहुत ज्यादा धो लेते हैं, और धोने से भी उसके विटामिन और मिनरल्स जा सकते हैं या जाते भी हैं। कई बार हम देखते हैं आजकल ना कटे हुए वेजिटेबल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कटे हुए, छिले हुए, साफ किए हुए। डू यू थिंक न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर? सर बिल्कुल नहीं। ओके, आपको जब भी भाजी खानी हो आप उसी वक्त काटिए, एटलीस्ट कुछ बचा खुचा तो मिल जाएगा। ओके, कई फ्रूट्स के, कई वेजिटेबल्स के हम छिलके नहीं खाते हैं, जबकि उसको हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गाजर ले लीजिए। मैं देखता हूँ कई लोगों को, लोग गाजर पील कर देते हैं, मैं लोगों को कई देखता हूँ कई लोग काकड़ी पील कर देते हैं। वो साथ में खाने के लिए बना हुआ, ओके। अगर साथ में खाने के लिए नहीं बना होता वो बहुत हार्ड होता या बहुत टेस्ट में गंदा होता, स्मेल में गंदा होता। नेचर ने इस तरह से बनाया हुआ है इन चीज। और जब भी आप खाना बनाते हैं तो ज्यादा पानी, मतलब इन चीजों को बेसिकली विटामिन मिनरल से हम बात कर रहे हैं तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, ज्यादा बनाते हैं ज्यादा पानी का यूज मत करिएगा, ज्यादा देर तक मत पकाइएगा, क्रंची जितना रख सकते हो उतना रखिएगा। और आखिरी बात, खाना उतना ही बनाइए जितना खा सकते। फिर आप उसको फ्रिज में रख दोगे, आप सोचो क्या कर रहे हैं। एक तो वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम हो चुका है, फिर आपने बना दिया है, फिर निकाल के उसको आप रीहीट करोगे और उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो। तो सिर्फ फिर आप अपना पेट भर रहे हो, जो आपके शरीर को एक्चुअली में चाहिए वो नहीं दे रहे। ओके, तो ये स्लाइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। अभी आप अगर आप देखेंगे कि विटामिन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, ये जो बीच में एक कर्व वाली स्ट्रेट लाइन है ये समझिए आपका शरीर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करता है। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में फुर्सत में देख सकते हो कि शरीर के अलग अलग हिस्से में, आपके माउथ में, खाने की नली में, पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अलग अलग जगह पे कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स बॉडी एब्जॉर्ब करता है, वो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर ये स्लाइड को अगर आप देखोगे तो
एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आप अपने खाने के साथ, आप अपने शरीर के साथ खाने से क्या कर रहे हो, है ना। अगर आपको रिक्वायर्ड विटामिन ए रोज चाहिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 233 स्ट्रॉबेरीज, मुझे एक्चुअली गाजर जैसा दिखा इसलिए मैं बोला गाजर तो नहीं दिख रहा, 233 गाजर कोई नहीं खा सकता। विटामिन ए आपको जितना चाहिए उतना विटामिन ए अगर आपको रोज के लिए चाहिए हो तो आपको 233 स्ट्रॉबेरी खाना होगा। इज इट पॉसिबल? अपने आप से पूछेगा। नो, आई एम नॉट asking this question from the point of view of money. It is money and the capacity of your stomach, your body, कि आप खा सकते हो। आपको जितना पोटेशियम चाहिए उतना पोटेशियम या बायोटिन चाहिए, उसके लिए आपको 21 केले रोज खाने होंगे। नहीं होगा ना। जितना आपको विटामिन डी चाहिए उसको आपको वो पाने के लिए सैल्मन फिश के 7 फिलेट्स मतलब 7 पीस खाने होंगे। नहीं पॉसिबल, बराबर। इसी तरह से अलग अलग है। जितना आपको कैल्शियम चाहिए आपको 6 जवारी की रोटी खानी पड़ेगी। पॉसिबल? आई डोंट नो कितने लोग 6 जवारी की रोटी खा ले दिन भर में। और इसका फिर साइड इफेक्ट भी देखिएगा, कितना कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है ना। तो सारा बैलेंस बिगाड़ देता है। इसीलिए हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ईट हार्ड या ईट स्मार्ट। ईट हार्ड क्यों बोलते हैं? कि आप इतनी क्वांटिटी खा सकते हो, जबरदस्ती पता नहीं खा पाओगे नहीं खा पाओगे, क्या आप जबरदस्ती उतना पैसा दे सकते हो, मुझे नहीं पता। या फिर क्या ऐसा कोई स्मार्ट तरीका है कि हम उसको स्मार्टली उसकी जो कमी है उसको हम पूरा कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। इसका कमी पूरा करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो है डेली प्लस विटामिन एंड मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट। ओके, इसके अंदर 24 विटामिन और मिनरल्स हैं, 4 हर्ब भी ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। ये आपको जो सारी चीजें पिछले स्लाइड में दिखाया था, कितना कितना चीज आपको डेली चाहिए, वो सारी चीज इसके अंदर है। मतलब अगर आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो वो आप खाइए, पेट भर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद अब तक तो आपको यकीन हो गया होगा कि जितने आपको विटामिन और मिनरल्स से पूरा नहीं पड़ रहा, उसको आप इस गोली से कंप्लीट कर सकते। तो ये सप्लीमेंट है ना, एक्चुअली आपका खाना है, ये उसके ऊपर का है जो आपके बॉडी में कमी है उसके लिए। क्या फायदा है इसका? इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल, जो आप इसके अंदर 4 हर्ब की बात करी है उसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा, मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा क्योंकि आपको अलर्ट रखेगा, नर्वस सिस्टम आपका अच्छा करेगा। ये इसके अंदर है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है DLDR। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूअल लेयर डिलेड रिलीज। अगर आप देखोगे तो ये टैबलेट आपको दिखेगा 2 कलर में, नीचे लाइटर है, ऊपर डार्कर है। जो ऊपर का जो पार्ट है, जो डार्कर है, वो आपकी बॉडी इमीडिएटली रिलीज कर देगी, इमीडिएटली आपकी बॉडी में रिलीज कर देगा और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर देगी। और जो नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने जब खाया उसी वक्त बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसी वक्त आपका काम पूरा हो गया, नहीं, बॉडी को भी आस्ते आस्ते कोई चीज चाहिए हो। तो जो चीज आस्ते आस्ते चाहिए होती है उसको हम लोग एक्सटेंडेड रिलीज में डाला हुआ है। तो टैबलेट ही इस तरह से बना हुआ कि जो इमीडिएटली आपको चाहिए ऊपर डार्क पार्ट में वो इमीडिएटली गल जाएगा और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो आहिस्ते आहिस्ते आपके बॉडी को चाहिए वो आपके नीचे वाले पार्ट में जो दिख रहा है लाइटर कलर का, वो एक्सटेंडेड रिलीज है, वो आस्ते आस्ते आपकी बॉडी उसको रिलीज करेगी। अब ये सवाल आता है कि हमें कब खाना चाहिए अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन और मिनरल, जिसकी हम लोग बात अभी तक आप लोगों ने कई किसी न किसी सेशन में बॉडी क्लॉक के बारे में सुना होगा कि हमारी बॉडी कब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है कोई चीज, है ना। तो सिंपल है, आप अपने यहाँ के सूर्य को फॉलो कर सकते हैं, सन को फॉलो कर सकते हैं। जब सन उगता है और जब सन डूबता है उसके बीच के पार्ट में हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे तरह से मेटाबोलाइज कर लेती है कोई भी चीज को, मतलब पचा लेती है अच्छी से कोई भी चीज। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि सुबह आपने जैसे ही नाश्ता किया उसके बाद इसको आप खा लो, मल्टीविटामिन को, डेली मल्टीविटामिन। तो अगर आपने खा लिया, आपके दिन भर का जो कमी है वो पूरा हो। आपको दिन भर के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितना अलर्टनेस चाहिए,
जितना एफिशिएंसी चाहिए वो सब आपको ये देते रहेगा, और नहीं किया तो आप लेथार्जिक रहोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं रहेगा, आपका स्लीप डिसऑर्डर होगा, और इसका बेसिकली इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेट, आपका वेट से। तो सबसे सही टाइम है खाने का, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। खाना जैसे आपने नाश्ता कर दिया, आप नाश्ता करके आप नाश्ता करके आप इसको खा सकते हो। इसका अगर आपको ब्रेकफास्ट में खाने का बेनिफिट चाहिए तो अगले स्लाइड में है, आप उसको देख सकते हैं। आपके एनर्जी प्रोडक्शन कर देता है, तो दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है, आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करके रखता है, ताकि दिन भर अगर आप बाहर जाओ तो आपको कहीं कुछ तकलीफ ना हो, है ना, कई टाइप के वायरस या बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं। आपका दिन की शुरुआत ही अच्छे से होगी, आप खुद को एनर्जेटिक फील करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके बोन और आई हेल्थ को इम्प्रूव करके रखेगा, कंसंट्रेशन मेमोरी को अच्छा रखेगा। ये सारे इसके बेनिफिट्स है ना, जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अच्छे विटामिन और अच्छे मिनरल्स और अच्छी क्वांटिटी में खाने से जो जो फायदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप रात को सोते हो तो सुबह उठने तक बॉडी ना रिपेयर मोड में रहता है। तो रिपेयर मोड में होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बॉडी कंज्यूम कर लेता है। तो बॉडी सुबह के टाइम पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहता है, मतलब नहीं रहता है बॉडी के पास उतना न्यूट्रिएंट जितना चाहिए होता है। तो अगर आपने सुबह सुबह खा लिया तो उसको उसने फुलफिल कर, तो सुबह से ही आपका दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट ऑफ कलर्स। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि कलरफुल, आपको आज का स्लाइड दिखेगा, ये भी है क्योंकि अलग अलग कलर ना अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, और उसके वजह से ये है अलग अलग खानों के अलग अलग आपको कलर दिखेंगे। हर सब्जी आपको हरी क्यों नहीं दिखती, हर फ्रूट आपको लाल क्यों नहीं दिखता, उसका कारण ये कि उसके अंदर ना कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कलर ऐसा है। अगले स्लाइड में अगर आप देखोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर आप लाल कलर देखेंगे उनके अंदर कैरोटीनॉइड ज्यादा होता है, बेटालाइन ज्यादा होता है ना। ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल एंड फाइकोसाइनिन होता है। ऑरेंज कलर के अंदर आपको ज्यादा करके ट्राइफोरेक्सिस होता है। मुझे मुझे ये नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टंग ट्विस्टर है, आप खाली इतना समझ जाइए कि अलग अलग कलर के अंदर अलग अलग केमिकल तो ना बोल के सबसे अच्छा अगर आप ये बोले कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसके वजह से वो आपको अलग अलग तरीके के फायदे देते हैं। अब आप में से कौन ऐसा चाहेगा जो बोलेगा कि नहीं मेरी आंखें अच्छी रहे लेकिन बोन कमजोर रहेगा, चलेगा? शायद कोई नहीं। क्या कोई ऐसा बोलेगा कि मेरी आंखें और बोन अच्छे रहे लेकिन नर्वस सिस्टम खराब हो, चल जाएगा मुझे? बिल्कुल नहीं। मतलब हमें पूरा सिस्टम एज अ होल बॉडी हमारी अच्छी चाहिए, अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम करे, ऐसी चाहिए। तो हमें हर तरह के कलर खाने होंगे, हर तरह के कलर के फ्रूट खाने होंगे, हर तरह के कलर के वेजिटेबल खाने होंगे। तो इसके अंदर ये था। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर ये सारी चीजों को अगर आप देखोगे ध्यान से कि जितने भी केमिकल के नाम है या जितने भी विटामिन और मिनरल्स के नाम है, ये आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की इनके अंदर काम करने की क्षमता होती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को समझ लेते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो भी ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन हमारे हर सेल को पे ले जाता है, शरीर के हर हिस्से में ले जाता है। क्या करता है वहां जाके? वहां जाके कुछ ना कुछ काम करता है, काम करता है मतलब कुछ ना कुछ रिपेयर वर्क करता है। और वो रिपेयर वर्क करने के बाद कुछ जो कचरा जमा होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और उन फ्री रेडिकल की वजह से अगर उनको हमने साफ नहीं किया उस कचरे तो हमें बहुत सारी तकलीफें दे सकता है। तो उन फ्री रेडिकल को साफ करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एकदम लेमैन भाषा में समझाया, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो होती है ब्लड स्ट्रीम से हीमोग्लोबिन के साथ हर सेल में जाता है, मतलब हर शरीर के हिस्से में जाता है, वहां जाके रिपेयर वर्क करता है। वो रिपेयर वर्क करने के बाद कुछ कचरा होता है, जैसे गैराज में जाओ, गैराज में कुछ काम करोगे कचरा होगा। अब वो कचरे को अगर आपने साफ नहीं किया तो क्या करें? कुछ ना कुछ गंदगी फैलेंगे, कुछ ना कुछ बीमारी आएगी। आप अगर हमने उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया तो आपको बीमारी होने का तो खतरा वैसे ही कम होगी। तो
अगर हमने नहीं किया तो हम क्या करते हैं, बाद में हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको कोई ना कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दे देगा, कोई एंटीबायोटिक दे देगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम कम हो गई थी, किसी बैक्टीरिया ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपकी तबीयत खराब हो गई। इस चक्कर से बचने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा खाना, जो कि आपको फ्रूट से और वेजिटेबल से मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें एक रेनबो खाना है। रेनबो मतलब अलग अलग कलर के खाने खाने हैं। आपको अपना प्लेन अपना आपको आपको आपके खाने को प्लान करना चाहिए पहले से। आपके स्नैक में फ्रूट और वेजिटेबल होना चाहिए, रादर देन गाठिया, फाफड़ा, जलेबी। नए नए फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्मूदीज और सलाद को आप खा सकते हो, जिसके अंदर ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं। बेनिफिट, क्योंकि ये सब न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, डाइजेशन बढ़ाएगा, स्किन हेल्थ बढ़ाएगा, मेंटल हेल्थ बढ़ाएगा, आंखों को तेज रखेगा, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना, सारे वही बेनिफिट है। एक और चीज है, अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं खा सकते हो तो एक और चीज है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब मैंने शुरू में इसको देखा था तो मैं बोला ये क्या है भाई, फ्रूट एंड वेजिटेबल का कॉन्सेंट्रेट। बोले हाँ, एक गोली के अंदर तकरीबन 1 किलो सब्जी और फ्रूट है। मानो नहीं मानो आपके ऊपर है। आप लोगों ने पिछली बार शायद विटामिन सी या तो कभी अपने विटामिन सी का दिखेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर 7 से 10 नींबू की ताकत एक विटामिन सी के अंदर। उसी तरह से इसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है 1 से 150। आप ये फ्रूट से बना हुआ है, इसके अंदर ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल टेस्ट है। एक गोली आप कंपेयर कर सकते हो क्या रेट में आपको पड़ती है अगर आपने 1 किलो फ्रूट बाहर से खाया, और उसके बेनिफिट तो आपको बताई थी। सो नेक्स्ट स्लाइड। आपको करना क्या है, एज यूजुअल जो हम बार बार हमेशा बोलते हैं, शाइन। आप अपने दिन की शुरुआत, है ना, साइन का मतलब एस फॉर स्टार्ट, दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट से करिए, है ना, ग्रेटिट्यूड से करिए। एच, हैव योर न्यूट्रिशन एवरी डे। आई, इंटेंशंस, विजुअलाइज एंड सेट क्लियर इंटेंशन के दिन भर में आपको करना क्या है आज, आपके गोल्स क्या हैं, हेल्थ के प्रति, फाइनेंस के प्रति, आपके पर्सनल लाइफ के प्रति। ओके, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, कुछ ना कुछ नई चीज सीखो, है ना, ये अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए। और एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बेसिकली आपके एटीट्यूड है, आपके बिहेवियर है, जो आप डेवलप कर सकते हो एवरी डे के लिए। इस तरह से करोगे, यू विल सी द डिफरेंस। जब बात आती है डिफरेंस की, आप डिफरेंस मेरा देख सकते हो। अगली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज उचिता। ओके, तो मैं कैमरा तो मेरा ऑन है, मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, बट दिस इज व्हाट आई वाज इन 2014। 2014 में मैं ये था 120 किलो। ओके, अब अगर मैं दिख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, बट आई एम नाउ 78-79 kg। इमेजिन करिए 120 किलो से 78 kg, 79 kg। और ये जो मैं आपको अभी का वजन बता रहा हूँ, ये पिछले 2021 से लेके अभी तक का वजन, मतलब वजन कम करने के बाद मेंटेन भी किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं हम तो वजन करते टाइम पे हमको वीकनेस आ जाती है। नहीं आएगी, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, वो नहीं होगी। दूसरा चीज, कई लोग बोलते हैं हमने वजन कम तो किया था, वापस से गेन कर लिया। नहीं, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहोगे, अच्छी आदतें डेवलप होंगी, अच्छी आदतें डेवलप होंगी तो अच्छा शरीर बना रहेगा। नेक्स्ट, ऑल ऑन यू। थैंक यू वेरी मच। Wow, thank रुचिता, you ओवर टू यू। so much. Sorry? रुचिता, ओवर टू यू। Thank you. Thank you. And thank you for that presentation. I think बहुत आसानी से काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मानते हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, एंड आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से इस पूरे सब्जेक्ट को समझाया है। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, बिकॉज डेफिनेटली जो आपने कहा, दो कंसर्न सबके रहते हैं कि कमजोरी होगी या हम वापस से वेट गेन कर लेंगे। लूज तो कर लेते हैं क्रैश डाइट करके, बट देन वो वापस आ जाता है वेट। तो इट इज रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। With that, ladies and gentlemen, we come to an end to this session.
You've all been a great audience. And since I don't see any questions or hand raised, I think we'll close now. Thank you. Good night. See you in the next session.